नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आज हम विस्तार से बात करेंगे अग्निवीरों के बारे में, अग्निवीर योजना के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसकी सफलता और इसमें किए जा रहे सुधारों को लेकर खुलकर बात की। और क्योंकि अग्निवीर को लेकर पहले से ही काफी विवाद रहा है, तो ऐसे में सेना प्रमुख का यह बयान उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो इस योजना का समर्थन करते हैं और उनके लिए भी जो इसका विरोध करते हैं। और सबसे जरूरी, इसमें बदलाव की बात भी कही गई है, तो उन युवाओं को भी सुनना चाहिए कि आगे चलकर उन्हें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले आप सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का अग्निवीरों पर यह बयान सुनिए जो उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कही। So let's spend a moment talking about the Agniveer scheme. Now that a few years have lapsed since the implementation of the scheme, what is the aggregate feedback you're getting from the troops and the officers about the efficacy of the scheme and potential suggestions you may have about how to make this more effective? So it's a very valid question, and there are always difference of opinion on this issue. And I, being the insider, I am getting the first-hand feedback of these issues. So let me assure the countrymen that this scheme is proving to be a very great success, and creme de la cream which is coming to us, and their urge to learn is somehow comparatively very, very high. As far as their capability to deliver, whatever we wanted them to deliver in 3 to 4 years, they are able to deliver. Now, coming on to what all is required to kind of make this scheme more effective, that we're already working on various issues. For example, are we looking at that their leave, something should be synergized with the normal soldier's leave? When he becomes a casualty, is it required to be harmonized with the serving soldier? Similarly, we want the technically qualified more people. Should we increase the age from 21 to 23? So these are some issues which we are looking at, and it's working well. सेना प्रमुख ने अग्निवीर योजना की सफलता और उसमें किए जा रहे सुधारों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जमीनी स्तर पर मिल रहे फीडबैक से साफ है कि ये एक सफल मॉडल बनता जा रहा है। उन्होंने इस योजना को एक बेहतरीन पहल बताते हुए कहा कि अग्निवीरों की क्षमता काफी अधिक है और वो 3 से 4 साल के भीतर सेना की जरूरतों के अनुसार खुद को ढालने में पूरी तरह सक्षम है। सेना प्रमुख ने बताया कि कैसे अग्निवीर योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है। छुट्टियों के प्रावधान को नियमित सैनिकों के समान करने, अग्निवीर को भी अन्य सैनिकों जैसी सुविधाएं देने और तकनीकी रूप से अधिक कुशल युवाओं की भर्ती को प्राथमिकता देने जैसे कई सुधारों पर विचार भी किया जा रहा। उन्होंने ये भी बताया कि योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सेना कुछ अन्य मुद्दों पर भी काम कर रही है ताकि अग्निवीरों को मुख्य धारा की सेना में बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके। अग्निवीरों की उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 करने और 25% की बजाय 50% सैनिकों को सेना में स्थायी रूप से बनाए रखने के सवाल पर जनरल द्विवेदी ने कहा कि ये एक सतत प्रक्रिया है और अभी इस पर अंतिम फैसला लेना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक इस योजना का पूरा आकलन करने के बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। No, but there was some conversation about increasing the percentage of retention from 25 to 50, that instead of retaining 1 in 4, retain 1 in 2 Agniveers. Do you support that, sir? So this is an evolutionary process, and it is too premature for us to take that decision. I think this decision we should leave it somewhere up till December 26 to look into what is required, what not. I will use the term in age of acceleration, something called as creative destruction. Why this term is important? Because what we see here, that the technology is changing so fast. Because a man has to learn something, he has to unlearn and learn a new skill. Now, Agniveer has got that potential because somebody who has been working on a particular thing for 10 to 15, 20 years, is very difficult for him to unlearn and learn a new thing. But for Agniveer, it's very easy. And the kind of technological changes which are taking place, the creative destruction concept, I think we will be more happy with the Agniveers. सेना प्रमुख ने तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में अग्निवीरों की जरूरतों और उनकी क्षमता पर भी बात की। उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की अवधारणा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोई भी सैनिक जो 10-20 वर्षों से एक ही क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके लिए नई स्किल्स सीखना और पुराने कौशल को छोड़कर खुद को अपडेट करना
चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं अग्निवीरों में ये क्षमता अधिक होती है क्योंकि वो कम समय में नई तकनीकों को अपनाने और तेजी से सीखने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि ये योजना भारतीय सेना के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अब सेना प्रमुख का ये बयान शायद इसका विरोध करने वालों को पसंद ना आए, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर मिल रहे फीडबैक में साफ है कि ये एक सफल मॉडल है और सेना प्रमुख के पास जो फीडबैक आएगा उससे विश्वसनीय क्या ही हो सकता है। ये खबर आज हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अग्निवीर योजना को लेकर हमेशा से तगड़ा विरोध रहा है। थोड़ा पीछे जाएं तो विपक्ष ने हमेशा से इसका विरोध ही किया है। ऐसे में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है अग्निवीर योजना में जो इसका विरोध होता आया है और ये सामान्य सैनिकों की श्रेणी से अलग क्यों माने जाते हैं। दरअसल सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई थी। ये युवाओं को डिफेंस में जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम है। सेना, वायुसेना और नेवी तीनों में योजनाओं के तहत सैनिकों का भर्ती हो सकती है। अग्निवीरों को 4 साल के लिए मौका मिलता है सेना के साथ जुड़ने का। साथ ही अगले 4 सालों के लिए उन्हें उनका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। 25% अग्निवीरों को नियमित सेना में लिया भी जा सकता है, जबकि बाकी 75% को एक बड़ी राशि के साथ स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो क्षमता के अनुसार नया काम खोज सके। इनके लिए हर राज्य में अलग अलग तरह के रिजर्वेशंस भी हैं। अब अग्निवीरों की नौकरी नियमित सैनिकों की नौकरी से कितनी अलग होती है वो भी जान लेते हैं। देखिए, अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए ही होती है। नियमित सैनिकों की नौकरी स्थायी होती है। अग्निवीरों को पुनः भर्ती किया जाएगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। नियमित सैनिकों के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती। नियमित सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है। नियमित सैनिकों और अग्निवीरों दोनों को ही कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। नौकरी के दौरान जान गंवाने वाला सैनिक ए से लेकर ई तक 5 श्रेणियों में शामिल होता है। वहीं अग्निवीर को एक्स, वाई और जेड में रखा गया है। कैटेगरी ए यानी सैनिक और कैटेगरी एक्स यानी अग्निवीर में वो कैजुअलिटी आती है जो सैन्य सेवा के कारण नहीं होती, यानी आर्मी सर्विस की बजाय अन्य वजह से मौत। बी और सी कैटेगरी में सैन्य सर्विस के कारण होने वाली मौतें शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए वाई कैटेगरी में यही है। सामान्य सैनिकों के लिए डी और ई में हिंसा, कुदरती आपदा, दुश्मन पर कार्रवाई, बॉर्डर पर हिंसक झड़प और जंग शामिल है। अग्निवीरों की जेड श्रेणी में यह आता है। सामान्य सैनिकों के आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में केंद्र सरकार हर महीने 5,000 रुपयों का योगदान देती है। साथ ही बैंक में भी उनका 50 लाख रुपए का बीमा होता है। वहीं अग्निवीर का 48 लाख रुपए का बीमा है, लेकिन इस सुविधा के लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार की तरफ से होता है। किसी ऑपरेशन के दौरान मौत होने पर दोनों ही के परिवारों को ये रकम मिल जाती है। डिफेंस फोर्स ने इसके लिए बैंकों के साथ करार किया है। सामान्य सैनिक और अग्निवीर दोनों का ही इंश्योरेंस बैंक करते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट बैंक पॉलिसी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीरों को अनुग्रह राशि के तौर पर 44 लाख रुपए मिलते हैं। रेगुलर सैनिकों के लिए ये अनुग्रह राशि 25 लाख से 45 लाख तक भी हो सकती है। ये रकम इस पर निर्भर है कि कैजुअलिटी किस तरह की थी। राज्यों की बात करें तो कई स्टेट देश के लिए जान गंवाने वाले या घायल सैनिकों को लाखों से लेकर 1 करोड़ तक अनुग्रह राशि देते हैं। ये दोनों ही तरह के सैनिकों के लिए हो सकती है। अब बात करें नियमित सैनिकों की तो उनके पास अलग स्कीम्स हैं, जैसे ग्रेचुइटी और मंथली फैमिली पेंशन। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। वहीं जिन सैनिकों की मौत सैन्य वजहों से ना हुई हो, उनके संबंधियों को भी 10 सालों तक आखिरी वेतन का 50% मिलता रहता है। इसके बाद ये घटकर 30% रह जाता है। मिलिट्री सर्विस या इससे जुड़ी किसी भी वजह से हुई कैजुअलिटी के मामले में एक खास फैमिली पेंशन लागू होती है जो सैनिक की आखिरी वेतन का 60% है। ऑपरेशन के दौरान मौत में आखिरी वेतन का 100% यानी पूरा वेतन पेंशन के तौर पर मिलता है। ये टैक्स फ्री होता है। 1 रैंक 1 पॉलिसी के मुताबिक ये रिवाइज भी होता है। पेंशन में डीए भी जोड़ा जाता है। अग्निवीरों के लिए एक अलग स्कीम भी है। सेवानिधि जिनकी मौत सैन्य सर्विस की वजह से ना हुई हो, उनकी फैमिली को मौत की तारीख तक जमा हो चुका अमाउंट सरकारी योगदान और ब्याज के साथ मिलता है। वहीं जिनकी मौत ऑपरेशन या ड्यूटी के दौरान हुई हो, उनके परिवारों को अग्निवीर के पूरे कार्यकाल यानी 4 सालों तक का वेतन और सेवानिधि मिलती है। लेकिन जैसा कि सेना प्रमुख ने कहा कि आने वाले वक्त में इस योजना में बदलाव होंगे, तो जरूर अग्निवीरों को इससे फायदा होगा और युवाओं का भी जोश बढ़ेगा।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।